Hello friends. So today we are going to start with question number 19 of your chapter number 5, that is admission of a partner. Now what does it says? This is a very good question, so mark it as an important question. It is a very good question. Tappu and Sonu are the partners. Sonu are the partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2. The balance sheet of the firm is given. Capital accounts are given, Tappu and Sonu ka. Profit and loss account is there, creditors are there, then bad debt reserve is there on the liability side. So you can see कि bad debt reserve liability side पे लिखी हुई है. Generally what we used to do is कि debtors में से minus करके देते थे, right? Here it is written over liability side. That is fine, doesn't make any difference as such. Goodwill is there, so old goodwill है तो old partners old ratio में बटेगी, right? Land and building, machinery, stock, debtors and cash are there. They admitted Goli as a new partner on the following terms. Goodwill is valued at 54,000, fine. Bad debt reserve on debtors to be maintained at 10,000. पहले कितने की थी? 16,000 की bad debt थी, bad debt reserve थी. Now it has to be maintained at 10,000. Then land and building is to be increased by 10%. Book value of machinery is 25% more than its market value. Value of stock is to be reduced by 10%. Goli will bring his capital equal to 50% of net assets of the new firm. Goli will bring his capital equal to 50% of net assets of the new firm. Now what do we mean by net asset? This is something a very interesting concept जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में at the end of the question I can say कि नेट असेट क्या होता है, कैसे हमें गोली की कैपिटल फाइंड करनी है, दैट वी विल अंडरस्टैंड. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. देन गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, फाइन. Tappu sacrifices 1/3 of his share. Of his share, the word is of. मानी मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ है और मैं उसमें से 10% आपको दूंगी, तो दैट इज ऑफ, राइट? 100 के 10%, दैट इज 10 रुपी आई विल बी गिविंग यू, राइट? तो टप्पू का जो शेयर है उसका 1/3 वो सेक्रीफाइस करेगा, राइट? तो उसके शेयर में से मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसका फाइंड करना है. विल सी टू इट. देन सोनू सेक्रीफाइसेस 1/6 शेयर फॉर गोली, तो सोनू का तो दे ही दिया है कि 1/6 शेयर वो सेक्रीफाइस कर रही है, दैट इज फाइन. When the word off is there, we need to be careful कि हमें उसमें sacrificing ratio कैसे find करना है, right? चलो फिर prepare the necessary accounts and balance sheet. Also determine the new PSR of all the three partners. Here they have asked us to find the new PSR as well. That we will be doing it, right? चलो तो ये हमारे पास चीज़ें दे के रखी इन लोगों ने. What we will be doing now is हम simple सबसे पहला अपना step 1 शुरू करेंगे. बैलेंसेस लिख लेंगे टप्पू गोली टप्पू सोनू और गोली के. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हैज टू बी 2 lakh and 3 lakh. कैश इन बैंक का इट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 40,000, राइट? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था शायद on our liability side. Yes, profit and loss account of 48,000 is there, right? So what we are supposed to do is 48,000 को distribute करेंगे amongst the old partner in the old ratio. So by profit and loss account, old ratio is 1:2. So we will be distributing the same 16,000 and 32,000. चलो फिर क्या है? नथिंग एल्स एज सच गिवन. कोई रिजर्व्स नहीं है, कोई फिक्टिशियस असेट नहीं है, एज सच कुछ भी नहीं है. सो वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. अब स्टेप नंबर 3. स्टेप 1 हमने बैलेंसेस लिख लिए. स्टेप 2 हमने रिजर्व्स और फिक्टिशियस असेट कुछ हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया. स्टेप 3 उसमें पार्ट 1 दैट इज गुडविल. हमारे पास ओल्ड गुडविल है ऑलरेडी. सो सबसे पहले तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज गुडविल, ये जो ओल्ड गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, राइट? So first of all, goodwill में old goodwill will be distributed amongst the partners. So what are the name? Yes, Tappu's capital account debit,
Sonu's capital account debit to गुडविल अकाउंट. 54,000 की गुडविल है जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, दैट विल बी 18,000 एंड 36,000. तो सबसे पहले वो मैं लिख लूँ. टू गुडविल 18,000 एंड 36,000. नाउ ये हो गया कि भाई ओल्ड गुडविल हमने लिख ली. नाउ व्हेन इट कम्स टू न्यू गुडविल, व्हेन इट कम्स टू न्यू गुडविल का पार्ट, तब हमें क्या करना है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सी टप्पू, सोनू एंड गोली, राइट. यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज 1:2. So 1/3 and 2/3, right? Now when it comes to sacrificing ratio, जो हमारे पास नहीं है, new PSR is also not there with us, right? जो हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? आप अगर देखो तो गोली के लिए दो पार्ट में मैं उसको डिवाइड करूंगी. देयर इज टप्पू एंड देयर इज सोनू, राइट. टप्पू में क्या बोला गया है कि भाई टप्पू विल गिव हिज 1/3 शेयर, राइट. ऐसा बोला गया है कि उसके ऑफ हिज शेयर, ऐसा वर्ड है मैंने जहाँ पे आपको मार्क करवाया, राइट, कि टप्पू विल बी गिविंग 1/3 ऑफ हिज शेयर. उसका जो शेयर है, यानी कि टप्पू का कितना शेयर है, 1/3 शेयर है, उसका 1/3 ही विल बी गिविंग टू होम, गोली, राइट. सो कैन आई से इट विल बी 1/9. मैंने जैसे आपको बोला कि 100 है और मैं बोलूँ कि मैं मेरे शेयर में से आपको 10% दूंगी, तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 10% करेंगे. इंटू विल बी देयर, क्योंकि मैं मेरे शेयर में से इतना दूंगी, राइट. सो हियर टप्पू विल गिव ऑफ हिज शेयर, सो उसके शेयर में से इतना शेयर ही विल बी गिविंग टू होम, गोली, राइट. सो इट विल बी 1/9 एंड सोनू का इट इज ऑलरेडी गिवन 1/6, करेक्ट. अगर मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, 9 इज देयर एंड 6 इज देयर, कैन आई टेक एन एलसीएम ऑफ, आई मीन रादर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आई कैन राइट 2/18 एंड 3/18, करेक्ट. डेफिनेटली आई कैन राइट 2/18 एंड 3/18. सो कैन आई से गोली का शेयर, गोली विल बी गिवन व्हाट, 2/18 एंड 3/18. कहाँ से आया पता चला ना, 2/18 एंड 3/18. देर इज 1/9 एंड देर इज 1/6. तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वो भी मैं आपको प्रॉपरली ही एक्सप्लेन करूँगी. इफ़ सम ऑफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स देन यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे 6 है, मुझे 18 लाना है तो हियर इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा. यहाँ पे 18 लाना है तो हियर इंटू 3 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा. And so we will be getting 2/18 and 3/18. So can I say Goli will get what? 2/18 plus 3/18, that is nothing but 5/18. So Goli का शेयर कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, करेक्ट. I hope you are clear with it now, right? अब so we have got this 2/18 and 3/18, that is our sacrificing ratio. हमें sacrificing ratio मिल गया है. अब हमें क्वेश्चन में ऐसा भी बोला गया है, मैं इसके साथ ही ये पॉइंट कवर कर रही हूँ गुडविल के साथ ही, कि भाई आप न्यू PSR भी फाइंड करो, न्यू रेशियो भी फाइंड करो. सो कैन आई राइट लाइक दिस, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस sacrificing ratio. I hope it is clear right now. So old ratio was 1/3 minus sacrificing ratio was 2/18. So can I write like this? And यहाँ पे it will be 4/18. ये हो गया किसका, टप्पू का, right? Then I'll be writing it over here, सोनू का, it was 2/3. Just a minute. 2/3 minus 3/18. So 18, and here it will be 12 minus 3 comes to 9/18, and Goli is already there, 5/18. So can I write like this, new PSR will be 4:9:5. तो हमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पे मिल गया हमें, राइट. ये मैंने किया ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पूरा कैलकुलेशन.
दिस कैलकुलेशन इज important. आई होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट. मैंने मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, राइट. नाउ लेट्स बिगिन विद द गुडविल पार्ट, राइट. गुडविल का पोर्शन जो है उससे हम शुरू करें. क्या करना है, तो गुडविल हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में देख ले पहले तो. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज गिवन? यस, इट इज 54,000, राइट. तो goodwill is 54,000, and then Goli's share of goodwill will be 54,000 into 5 by 18. You will be getting 15,000, correct. And what will be the journal entry over here? Cash account debit 15,000 to premium for goodwill account 15,000, premium for goodwill account debit to Tapu's capital account to Sonu's capital account, and definitely it will be in which ratio? Sacrificing ratio, that is nothing but 2:3 that we have already found out over here. So it will be 15,000, 2:3, 6,000 and 9,000, right? So this is how we are supposed to make the journal entries. Now फटाफट से इसका ledger posting कर ले. Right? By premium for goodwill account 6,000 and 9,000, and cash account में we will be recording to premium for goodwill account. Correct. So we are done with it. इतना हो गया, फाइन. गुडविल का पोर्शन इज डन. दोनों एंट्रीज का हमने लेजर पोस्टिंग कर दिया है. सो लेट्स मूव फर्दर. अब हमें क्या करना है? गुडविल पोर्शन इज नाउ डन, सो वी विल बी मूविंग फर्दर विथ आवर नेक्स्ट स्टेप. यस, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10,000. तो मैं यहाँ पे डेटर्स बैलेंस शीट में कितने के लिखूंगी? 70,000 के लिखूंगी, राइट. डेटर्स डायरेक्टली आई एम राइटिंग 70,000, करेक्ट. एंड दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? कैन आई से रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आई विल बी रिकॉर्डिंग 6,000. बैड डेट रिजर्व कम हुई ना, 16,000 था, उसका 10,000 हो गया. सो बाय बैड डेट रिजर्व 6,000. देन लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग कितने के हैं? 3 लाख के हैं. 10% से इंक्रीज करना है, सो 30,000 विल बी इंक्रीज्ड बाय land and building 30,000, and in my balance sheet I'll be writing land and building 3,30,000, right. Then book value of machinery is 25% more than its market value. Now this is also good point. Book value of machinery is 25% more than its market value. If I say, मैं यहीं पे working note कर रही हूँ, if I say market value is 100, then book value is 25% more. So can I say it is 125, right? अब book value कितनी दी हुई है मशीनरी की? 125 पे 1 लाख दी हुई है. So can I write like this? 125 पे 1 लाख, then how much for 100? वापस से बोल रही हूँ, लिसन टू मी केयरफुली अगेन. मुझे ऐसा बोला गया है, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू. इफ द मार्केट वैल्यू इज 100, देन कैन आई से बुक वैल्यू इज 25% मोर, सो इट विल बी 125. 100 प्लस 25 कम्स टू 125. और हमें बुक वैल्यू यहाँ पे 1 लाख की दी हुई है, सो 125 पे 1 लाख, देन हाउ मच फॉर 100? क्योंकि मुझे तो मार्केट वैल्यू कंसिडर करनी है, राइट. सो यू विल बी गेटिंग 80,000 over here, correct. So market value
is decreased. Here I'll be writing machinery 80,000, and in my revaluation account I'll be writing on the debit side to machinery 20,000. Correct? Then what next? Value of stock is to be reduced by 10%. Stock was 40,000, so let's reduce it to stock 4,000, and in my balance sheet I'll be writing stock 36,000. Then next, goodwill, yes, this we will be doing it later on. At the end of the question we will be doing this particular portion. Goodwill will bring his Goli will bring his share of goodwill, that is also done. So we are done with all the adjustments except of capital, right? हमने बाकी सारे adjustments कर लिए हैं. Now from the balance sheet what we will be doing is जो चीज़ें बाकी रह गई है वो लिख लेंगे. Creditors are left as such, और कुछ बाकी नहीं बच रहा है. So let's just quickly finish writing the creditors. करेक्ट. तो क्रेडिटर्स भी लिख लिए. मैम सब कुछ हो गया, अब तो करें कैपिटल का पॉइंट? नहीं, अभी भी नहीं. सब कुछ हो गया है, बट स्टिल हमारे पास अभी टप्पू और सोनू का गुडविल कैपिटल फाइंड करना बाकी है ना. दे हैवंट गिवन एनीथिंग अबाउट टप्पू एंड सोनू. सो हमें टप्पू और सोनू की तो गुडविल निकाल ही लेनी है. हमें गुडविल नहीं, कैपिटल निकाल ही लेनी है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि भाई गोली का जो कैपिटल का शेयर है दैट वी आर सपोज टू फाइंड बाय टेकिंग द नेटवर्थ, यानी नेट असेट्स ऑफ द कंपनी, राइट. तो नेट असेट्स फाइंड करने के लिए और वो सभी कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी फाइंडिंग द कैपिटल्स ऑफ टप्पू एंड सोनू फर्स्ट. सो आप क्या करेंगे, फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस फाइंड कर लेंगे. 36,000 एंड हियर इट इज 24,000. सो 36,000 and the balance remains as 12,000, which will be distributed amongst the old partners. टप्पू एंड सोनू. 12,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, 4,000 एंड 8,000. तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 एंड 8,000. करेक्ट. इसका भी मैं टोटल कर लूँगी. मुझे ऐसा टप्पू और सोनू में तो कुछ उन लोगों ने गड़बड़ दी ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले मेरा वो काम निपटा दूँ. उसके बाद वी विल बी डूइंग द गोली का कैपिटल वाला पोर्शन. तो टोटल ऑफ 2,16,000 प्लस 6,000, तो 2,26,000. 2,26,000 minus 18,000. So you will be getting what? 2,08,000. That is the balance. To balance carry down. Same over here, 3 lakh plus 32 plus 9 plus 8, 3,49,000 minus 36,000. So you will be getting what? 3,13,000. Correct. 3,49,000 minus 36,000, 3,13,000, right. उसको भी मैं एज ऑफ नाउ यहाँ पे लिख ही लूँगी. कहाँ पे लिखेंगे हम इसको? बैलेंस शीट में. कैपिटल अकाउंट्स टप्पू एंड सोनू. इट इज हाउ मच? दैट इज 2,08,000 and 3,13,000, right. This is what we have found out. Now let's come back to the question first. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पे आ जाए. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, we will be looking at that particular thing first. Goli will bring his capital equal to 50% of net assets of the new firm. ऐसा हमें बोला गया है क्वेश्चन में, राइट, कि गोली 50% ऑफ नेट असेट्स की कैपिटल लेके आएगा. अब
व्हाट डू वी मीन बाय नेट असेट? पहले तो मैं उसके बारे में बात करूँ, थोड़ा बहुत उसका वर्किंग नोट करेंगे हम। मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रही हूँ, एकदम रफ बैलेंस शीट है ये। दिस इज अ रफ बैलेंस शीट दैट आई एम ड्रॉइंग। थोड़ा प्रॉपरली, here there will be assets, here there will be liabilities, right? Now what do we mean by net assets? पहले तो हम ये समझे कि what do we mean by net assets? assets का टोटल, सारी assets का टोटल, सबसे पहले तो all the total of the net assets, that is total assets minus, यहाँ पे क्या होगा, सारी outside liabilities होगी, correct? minus outside liabilities is nothing but what? Net assets. I'm repeating it again, friends. Net assets का मतलब क्या हुआ है? Total of the assets minus outside, all the outside liabilities is nothing but what? Net assets. ये इतना समझ में आया कि net asset किसे बोलेंगे? Now coming back to our question, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे पास टोटल असेट्स तो नहीं है? वाई सो? बिकॉज आई डोंट हैव द कैश एंड बैंक का बैलेंस। अभी वो तो फाइंड करना ही मेन बाकी है कि भाई गोली कितनी कैपिटल लेके आएगा वो पता नहीं चला है, तो माई बैलेंस विल फ्लक्चुएट, सो आई डोंट हैव कैश एंड बैंक का टोटल बैलेंस, राइट? सो आई डोंट हैव द टोटल असेट्स विथ मी। आई डू हैव द आउटसाइड लायबिलिटीज, पर उसका कुछ हो नहीं सकता। कैन आई से कि नेट असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी? So what portion left over here is capital का portion, correct? इतना समझ में है? What portion left over here is what? Capital का portion, right? So can I write like this? Net assets is nothing but capital only in this case, क्योंकि बाकी क्या रह गया? Capital, right? इतना समझ में आया? So net asset is nothing but what? Capital का portion. Now अब समझना अच्छे से, total capital is nothing but our net assets, right? This is divided amongst the three partners, that is टप्पू, सोनू and गोली, right? टप्पू का मैंने कैपिटल फाइंड करा है, कुछ 2,08,000 था। सोनू का मैंने फाइंड करा है कुछ 3,13,000 का, एंड गोली का आई डोंट हैव। पर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि गोली विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट असेट्स, यानी कि 50% ऑफ कैपिटल आई कैन से इन दिस केस, राइट? सो गोली विल ब्रिंग 50% ऑफ कैपिटल। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि गोली अगर 50% लाने वाला है तो ये मेरा ऑलरेडी 50% है, क्योंकि 100% का ही 50-50 होता है ना, करेक्ट? If Goli is bringing the 50% of the net assets, then can I say Tappu and Sonu की capital मिला के it is already 50% and Goli will bring the remaining 50, correct? So इसका total हम करें, so it will come to 5,21,000. So Goli will bring what? 5,21,000 as the capital. This is the very amazing point to understand. टोटल कैपिटल है उसका 50% गोली विल ब्रिंग, सो कैन आई से कि बाकी के जो पार्टनर्स की कैपिटल है इज नथिंग बट द रिमेनिंग 50%, एंड वी डू हैव दैट, राइट? सो उसका टोटल दैट इज 50%, देन गोली विल ब्रिंग द रिमेनिंग 50%, दैट इज 5,21,000 अगेन. सो नाउ लेट्स डू द लेजर पोस्टिंग ऑफ द सेम. अब हमें समझ में आ गया है, करेक्ट, कि हमें क्या लिखना है, कैसे. तो I'll be writing it over here in my partner's capital account by cash account. अब हमें पता चला कि भाई गोली कितने पैसे एज अ कैपिटल लेके आया. 5,21,000. 5,21,000. Here there was nothing, and here it will be again 5,21,000. And now we will be recording it in our cash account also to Goli's capital account. 5,21,000. Total करो 521 plus 55, so it will come to 5,76,000. 5,76,000 by balance carried down 5,76,000. Let's record it. Here Goli
5,21,000 plus 521, so comes to 10,42,000, and here the cash in bank will be 5,76,000 that we have found. So the total of the balance sheet, that is 10,42,000 plus 50,000, so 10,92,000. Here also it will be 10,00,000. This is how you are supposed to calculate the share of capital of goodwill in this manner. This is a very good example of finding the capital of a new partner, right? I hope you are clear with the same. Thank you.